माय चैनल। सो आज मैं एक और नए लोकेशन पे आ गई हूँ। ये है ब्रह्मपुर। सो मेरे पीछे जो ये बिल्डिंग देख रहे हैं ये G+3 बिल्डिंग है। आज मैं इसको कवर करूँगी और इसमें सारे के सारे 2 BHK है। सो आज हमें वीडियो में हेल्प करेंगे सौरभ दा। सो हम सौरभ दा को ही बुला लेते हैं और पूछ लेते हैं कि क्या है, लोकेशन क्या है, सोसाइटी क्या है, सब कुछ डिटेलिंग वगैरह हम सौरभ दा से ले लेते हैं। सो वेलकम सौरभ दा। थैंक यू। ओके, सो सौरभ दा, सबसे पहले आप मुझे ये बता दीजिए मेट्रो स्टेशन और बस वगैरह की क्या फैसिलिटी है और लोकेशन क्या है? এটা লোকেশন হচ্ছে ব্রহ্মপুর প্রগতি পার্ক। এটা ডাইরেক্ট অটো আছে বাসদিনী সূর্যসেন মেট্রো স্টেশন থেকে। অটোতে 6-7 মিনিট লাগে, 2 কিলোমিটারের কম ডিস্টেন্স। আর প্রগতি পার্ক যেখানে অটোটা দাঁড়ায় সেখান থেকে এখানে 2 মিনিটের ওয়াকিং ডিস্টেন্স এই ফ্ল্যাটটায়, প্রপার্টিটা। এটা G+3 বিল্ডিং আছে, প্রত্যেকটা ফ্লোরে 3টে করে ফ্ল্যাট, উইথ লিফট আছে, সিকিউরিটি আছে। और मेट्रो स्टेशन वगैरह? মেট্রো মাস্টারদা সূর্যসেন, ওখান থেকে অটো আছে। NSC বোস রোড মাস্টারদা সূর্যসেন থেকে ডাইরেক্ট অটো আছে প্রগতি পার্ক। अच्छा, বা অটোর গায়ে লেখা থাকে বালক সংঘ বলে। ওই অটোতে 9 টাকা ভাড়া নেয়, 2 কিলোমিটার ডিস্টেন্স আছে। अच्छा 9 रुपये किराया लेते, ये भी जान लीजिए। सो जो लोग कैलकाटा के नहीं है तो उन्हें पता होना चाहिए कि 9 रुपये किराया लेता है बस में। ओके, सो मेट्रो स्टेशन, बस स्टॉप, ऑटो स्टैंड सब नियर बाई है, मतलब वो 1-1.5 किलोमीटर के अंदर पे ही है। ये G+3 बिल्डिंग है। और एक चीज़ और बता दीजिए, स्कूल, सबसे पहले स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, इन सब की क्या व्यवस्था है, मार्केट की क्या व्यवस्था है? আচ্ছা, মার্কেট এখান থেকে বেরোলেই মার্কেট আছে, বাদামতলা বলে জায়গাটা। এই আচ্ছা, প্রগতি বাদামতলা, মার্কেট, ওকে। ওইখানেই মার্কেট। ওইটা সকালে বিকেলে দুবেলায় মার্কেট বসে বাদামতলা। এখান থেকে ওয়াকিং ডিস্টেন্স 1 মিনিটের মধ্যে। ওখানে সবজি বাজার, মাছ বাজার সব পেয়ে যাবে। अच्छा, और स्कूल कॉलेज? স্কুল এখানে ওয়াকিং ডিস্টেন্সে একটা ICSE বোর্ড স্কুল আছে, নিবানন্দ স্কুল। এছাড়া হলিওম আর একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল আছে, যেটা অটো করে যেতে হয়। অটোতে ওই বাসদানি একদম মেট্রো স্টেশনের গায়ে। अच्छा, আর এছাড়া বিডি মেমোরিয়াল ইন্টারন্যাশনাল স্কুল আছে গড়িয়াতে। গড়িয়াও এখান থেকে 2.5 কিলোমিটারের মধ্যে। अच्छा, গড়িয়াতে আপনার অটো স্ট্যান্ড আছে, কিন্তু এখান থেকে 7-8 মিনিট হেঁটে অটো ধরতে হবে। हाँ। তো ওখানে বিডি মেমোরিয়াল ইন্টারন্যাশনাল স্কুলটা পেয়ে যাবে। और कॉलेज क्या है? কলেজ এখানে 3টে কলেজ, KK দাস কলেজ আছে, দীনবন্ধু এন্ড্রুজ কলেজ আছে, যেটা গড়িয়া লোকেশন, যেটা এখান থেকে 2.5 কিলোমিটার। আর টালিগঞ্জে আছে একটা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ আছে গভর্নমেন্টের, IT কলেজ। তো ওইটাও উইদিন 3.5 কিলোমিটারের মধ্যে। वाओ, सो ये सारे ও गवर्नमेंट ফিউচার ক্যাম্পাস আছে বোড়ালে। फ्यूचर Future कैंपस Techno- बोराल में है। হ্যাঁ, ওইটা বোড়াল এখান থেকে 2 কিলোমিটার। अच्छा, और हॉस्पिटल? হসপিটাল আমাদের NSC বোস রোডে 3-4টে হসপিটাল আছে। BRWS হসপিটাল আছে, একটা প্রাইভেট নার্সিং হোম আছে। আর এছাড়া পেয়ারলেস হসপিটাল এখান থেকে 4.5 কিলোমিটার। মুকুন্দপুরে দেবী শেট্টি হসপিটাল 4.5 কিলোমিটারের মধ্যে। তো এগুলো NSC বোস রোডে গেলে ডাইরেক্ট বাস পাওয়া যাবে। अच्छा, और यहाँ पे मॉल वगैरह? মল তো আমাদের গড়িয়া মোড়ে প্যান্টালুন্স আছে, বাসধনীতে ম্যাক্স আছে, আর Brand Factory ব্র্যান্ড আছে, ফ্যাক্টরি আছে, যেটা আমি দেখেছি। কামালগাছি মোড়ে। কামালগাছি এখান থেকে 3.5 কিলোমিটার। ओके, এগুলো পেয়ে যাবে। अच्छा, सो मॉल भी आसपास हैं, आपको मॉल की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सुपरमार्केट जैसे डेली शॉपिंग, Right, मतलब exactly. सब्जी भाजी खरीदने के लिए? সবজি বাজি এখানে সকালবেলায় লকডাউনের পর থেকে এখান থেকে সব ভ্যানগুলো আসে। ঠেলা বাড়ির ঠেলা সামনে গাড়ি ঠেলাগুলো, আती है। বাড়ির সামনে একদম মানে পাগল করে দেবে, এত ভ্যান আসে। अच्छा, আর মানে 5 মিনিট 6 মিনিট পর পর হকার পেয়ে যাবে, अच्छा, সবজি মাছ। और अगर किसी को जाना हो तो? জানা হতো এখানে 2 মিনিট ওয়াকিং ডিস্টেন্সে চলে যেতে পারবে। अच्छा, 2 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे একদম ही বাদামতলা market है। মোড়, ওখানে পুরো বাজার হয়েছে। अच्छा, तो ये जो रास्ता है बिल्डिंग के सामने, ये जो बिल्डिंग मुझे दिख रही है, इसके पीछे जो आपको रास्ता दिख रहा होगा, ये कितना ब्रॉड है? এই 20 ফিট ব্রড আছে। अच्छा, तो ये 20 फीट का चौड़ा रास्ता है। एक यहाँ पे आप corner चाहे तो plot आती है, ट्रक, दूसरी अगर तरफ। आपके पास है तो आप ट्रक भी ला सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ट्रक लेकर आइए। सो ट्रक भी आप ला सकते हैं, तो बेसिकली आपका कार वगैरह घुस जाएगा। एक चीज़ और मुझे बता दीजिए, पार्किंग है क्या? পার্কিং আছে, কমিউনিটি হল আছে, সিকিউরিটি রুম আছে, 3টে এখানে পেয়ে যাবে। पार्किंग के चार्जेस क्या है? पार्किंग হচ্ছে 3 लाख रुपीस। वाओ, मतलब मैंने इतने सारे प्रोजेक्ट किए हैं, कहीं पे भी मुझे 3 लाख में तो नहीं मिला। सो इस यहाँ पे आपको 3 लाख में पार्किंग मिल रहा है। और एमिनिटीज़ में क्या क्या है? এভিনিউজে লিফট আছে, কমিউনিটি হল আছে, সিকিউরিটি আছে, ক্যামেরা? CCTV ক্যামেরা বসানো হবে। আর এছাড়া Power backup? পাওয়ার ব্যাকআপ। अच्छा, स्टैंड अलोन बिल्डिंग है, पावर बैकअप नहीं है, कम्युनिटी हॉल रहेगा, CCTV रहेगा, সিকিউরিটি রুম আছে, सिक्योरिटी रूम है, কমিউনিটি হল আছে। कम्युनिटी हॉल है। और पानी की क्या व्यवस्था পানি है? এটা কর্পোরেশন এলাকা, এটা 111 নম্বর ওয়ার্ড, পিনকোড হচ্ছে কলকাতা 96।
এখানে গার্ডেন রিচের জল পাবে, রিজার্ভার আছে, রিজার্ভার থেকে ওপরে ট্যাঙ্ক থেকে সব ফ্ল্যাটে স্প্রেড করবে। अच्छा, और मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह क्या है? মেনটেন্যান্স চার্জ যদি সিকিউরিটি, এটা টোটালি ফ্ল্যাট ওনার্সদের ওপর ডিপেন্ড করছে। সিকিউরিটি রুমে যদি সিকিউরিটি ওরা রাখতে চায় তাহলে পার স্কোয়ার ফিট 1000 টাকা করে, 1 টাকা করে মেনটেনেন্স দিতে হবে। सॉरी, मतलब 1 रुपये पर स्क्वायर फीट अगर सिक्योरिटी रखते हैं तो आपको देना पड़ेगा। হ্যাঁ, আর নেই তো সিম্পলি যদি করে তাহলে 500 রুপিস করে পার ফ্ল্যাটে মেনটেনেন্স। अच्छा, अगर आप सिक्योरिटी नहीं रखते, बेसिकली किसी भी बिल्डिंग का मेंटेनेंस जो है वहाँ की सोसाइटी डिसाइड करती है। तो ये आप पे डिपेंड करता है। आप लोग अगर खरीदोगे तो आप इसको कैलकुलेट करोगे कितना एक्सपेंस होना है, कितना पर स्क्वायर फीट लेना है, ये आप पे डिपेंड करता है। सो मैं एक और चीज़ पूछती है, एमिनिटीज़ के लिए क्लाइंट को कितना पे करना पड़ेगा? নাথিং, টোটাল ভ্যালু অফ ফ্ল্যাটের মধ্যে সবকিছু ধরা আছে, वाओ, এক্সক্লুডিং শুধু ওই কভার গ্যারেজ যদি Parking কিনতে হয় charge। তাহলে ওটা 3 লাখ अच्छा, रुपीस सो ये बेसिकली एक बहुत अच्छा है। यूजुअली क्या होता है, किसी भी बिल्डिंग में मिनिमम आपको 80,000 देना पड़ेगा फॉर 2 BHK। मेरे कुछ वीडियोस में आपने सुना होगा 65 फॉर 1 BHK एमिनिटीज़ चार्जेस देने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे पूरा फ्लैट के अंदर ही इंक्लूड है। सब पर सो ये जान लिया हमने कॉलेज कवर। अच्छा, बैंक वगैरह की क्या व्यवस्था ব্যাংক है? তো এখানে 4-5টা ব্যাংক আছে, বন্ধন ব্যাংক আছে প্রাইভেট ব্যাংকের মধ্যে, সেটাও এই বাদামতলা মোড় যেখানে বাজারটা আছে 2-3 মিনিটের ওয়াকিং ডিস্টেন্সের মধ্যে। এছাড়া ব্যাংক অফ বরোদা আছে, স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া আছে, সব উইদিন 50 মিটার্সের মানে বাদামতলা থেকে 50 মিটার্সের মধ্যে এই ব্যাংকগুলো পেয়ে যাবে। अच्छा, सो बैंक वगैरह भी है, हॉस्पिटल भी है। হসপিটালের কাছাকাছি স্কুল তো ওয়াকিং ডিস্টেন্সের মধ্যে আইসিএসসি বোর্ড, নিবানন, বেঙ্গলি মিডিয়াম তো অনেকগুলো স্কুল আছে, ইংলিশ মিডিয়াম আমি বললাম। अच्छा, तो जैसा मैं देख रही हूँ यहाँ पे सिर्फ वाइट कलर अभी हुआ है, तो मतलब ये अभी थोड़ा बहुत अंडर कंस्ट्रक्शन है। উইদিন 1 মান্থ হ্যান্ড ওভার হয়ে যাবে। अच्छा, तो विद इन 1 मंथ आपको हैंडओवर मिल जाएगा। एकदम। अच्छा, लोन की क्या व्यवस्था है? এটা হচ্ছে ব্যাংক অফ বরোদা অ্যাপ্রুভ প্রজেক্ট। এটা এছাড়া এটা ফ্রি হোল্ড প্রপার্টি পারচেস ল্যান্ডের উপর করা হয়েছে। যে কোনো ব্যাংক থেকেই লোন হবে, কিন্তু ব্যাংক অফ বরোদাতেই করলে ওটা অ্যাপ্রুভাল করা আছে। अच्छा, बैंक ऑफ बड़ौदा से अप्रूव्ड है। अगर आपका कोई है तो आप उससे भी कर सकते हैं। सो कोई दिक्कत नहीं होगी लोन के लिए, और वैसे भी सौरभ दा रहेंगे आपको हेल्प करने के लिए। अच्छा, আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে এখানে আমাদের কোনো ওনার যারা পারচেজার আছে তাদের কোনো ব্রোকারেজ দিতে হচ্ছে না। wow, you know, it's a big brokerage। bomb. So no brokerage, নো ব্রোকারেজ, নো জিএসটি, কোনো No জিএসটিও লাগবে না, GST। ব্রোকারেজও লাগবে। नो GST। ओ माय गॉड, ब्रोकरेज तो समझ में आता है कि चलो आप अगर एजेंट के थ्रू नहीं आते हैं तो आपको ब्रोकरेज नहीं देना पड़ता है, लेकिन GST, ओ माय गॉड, यूजुअली आप लोग को पता होगा 1% GST देना पड़ता है, लेकिन आपको यहाँ पे GST नहीं देना पड़ेगा। एमिनिटीज़ के कोई चार्जेस नहीं है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जस्ट ग्रैब इट। ओके, सो अभी आप सौरभ भैया से पूछ लेते हैं कि बिल्डिंग में कौन से फ्लोर पे कितने मतलब Flat फ्लैट available खाली আছে। है। यस, তো পার ফ্লোরে 3টে করে ইউনিট আছে। ফার্স্ট ফ্লোরে 3টে আছে, একটা বিক্রি হয়েছে। থার্ড ফ্লোরে একটা বিক্রি হয়েছে। সেকেন্ড ফ্লোরে এন্টায়ারটা খালি আছে। अच्छा, আর সেকেন্ড ফ্লোরটা যা দেখতে যেরকম ফ্ল্যাটটা আছে ওই এন্টায়ার ফ্লোরের সেম ডিজাইন। वाओ। সেকেন্ড ফ্লোরটা দেখলে পুরো বিল্ডিং এর সব ফ্ল্যাট দেখা হয়ে যাবে, 3 মানে সেম ডিজাইনের সব। अच्छा, सो मतलब बेसिकली यहाँ पे 3-4 फ्लैट ही सोल्ड आउट हुए हैं, बाकी अवेलेबल है। सो अगर आप लोग को आना है और जल्दी कीजिए, वरना इतना अच्छा ऑफर 3 लाख में पार्किंग, नो GST, नो ब्रोकरेज, नो एमिनिटीज चार्ज, ऐसा ऑफर आपको रेयरली कहीं मिलेगा, आई बेट यू। सो चलिए, आप फ्लोर की क्वालिटी और अच्छा, एक और चीज़ पूछना चाहूँगी, बारिश के समय यहाँ पानी जमता है क्या? না, এটা দেখতে পাচ্ছি কনস্ট্রাকশন আছে, এই রাস্তাগুলোতে সব আন্ডারগ্রাউন্ড ড্রেনেজের লাইন হয়ে গেছে। আচ্ছা। এবার সুন্দরভাবে পিচ হবে, ওই অবধি পিচ হয়ে গেছে। अच्छा, তুমি একটু আগে নিয়ে গেলে দেখিয়ে দিও, হ্যাঁ, হ্যাঁ। ওই অবধি পিচ হয়ে গেছে। এইগুলো বিফোর আমাদের বিল্ডিং রেডি না হতে হতে দেখবে পিচ হয়ে যাবে। अच्छा, এগুলো सो সব underground drainage बेसिकली এর line হয়ে গেছে। आपको दिख रहा है कि नहीं, वहाँ पे बीच हो गया है, बीच रास्ता हो गया है। अभी विद इन 1 मंथ बाकी का ये जो रास्ता है ये भी बीच हो जाएगा। सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपके पास সব कोई, underground drainage হয়ে গেছে। हाँ, सो अंडरग्राउंड ड्रेनेज है, पानी नहीं जमता है। ये देखिए ठेला वाला जा रहा है, सब्जी वाला। सो सब्जी भाजी के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, यही लोग बहुत आप लोग को परेशान करेंगे। सो अच्छा, मैं एक और चीज़ पूछ लेती हूँ, बिल्डिंग में टाइल्स बिछाए जा रहे हैं या रेक्टिफाइड टाइल्स
আচ্ছা। জনসনের রেকটিফাইড টাইলস প্রত্যেকটা ফ্লোরে লাগানো হচ্ছে, অলরেডি হয়ে গেছে লাগানো। আর তো 3টে ঘরে এসি পয়েন্ট থাকছে, 2 बेडरूम, 1 लिविंग रूम। वाओ, मतलब हाँ। लिविंग रूम में एसी का पॉइंट बहुत रेयरली देखा है मैंने। सो यहाँ पे पहली बात तो रेक्टिफाइड टाइल्स लगाए जा रहे हैं, तीनों रूम में एसी का पॉइंट रहेगा जैसा भैया ने बताया। और वायरिंग किसकी हुई है? वायरिंग सब हेवेल्स से तार দিয়ে হয়েছে, हेवेल्स, সব প্যারাগনের সুইচ বোর্ড থাকবে, पैरागॉन स्विच बोर्ड्स एंड ইনওয়্যারে ফিটিংস বাথরুমে। हिंडवेयर का फिटिंग्स बाथरूम में रहेगा और जॉनसन के टाइल्स यूज़ किए हुए जैसा कि उन्होंने पहले ही बताया है। तो चलिए अब तक ये डिटेल्स हमने जान लिए यहाँ पे। अच्छा, और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड किसके अंदर है? সেম ওই খালের ওই পারে গেলে স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের আন্ডারে হয়ে যায়। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंदर है। सो लाइट वगैरह পাওয়ার नहीं কাটিং কোনো দিনই হয় না, রেয়ার। अच्छा, सो पावर कटिंग नहीं होगा। सो चलिए अब अंदर चलते हैं और लेआउट चेकआउट करते हैं कि कैसा क्या 2 BHK का लेआउट है। सो लेट्स गो। ओके, जैसा कि आप लोग ये देख रहे हैं कि ये पार्किंग एरिया है, ये वो बिल्डिंग है जिसे मैं कवर करने के लिए आई हूँ। सो नीचे में पार्किंग एरिया है जैसा कि बताया। पार्किंग के लिए आपको 3 लाख पे करना पड़ेगा। सो ये G+3 बिल्डिंग है। अभी ये थोड़ा बहुत कलरिंग वगैरह बाकी है। विद इन 1 मंथ आपको हैंड ओवर मिल जाएगा। सो बेसिकली ये वो बिल्डिंग है G+3 और नीचे में आपको 4 व्हीलर के लिए पार्किंग दिया हुआ है। सो अब चलिए ऊपर चलते हैं और रूम्स चेकआउट करते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये स्टेयर्स है और स्टेयर्स में ग्रेनाइट और मार्बल की फ्लोरिंग की गई है। पॉलिश अभी नहीं हुआ है, बट आप लोग देख रहे हैं कि इतने ब्रॉड स्टेयर्स है। इट्स ऑलमोस्ट 4 फीट। सो अगर सोफ़ा सेट होता है ना तो ईज़िली आ जाएगा, कोई भी बड़ा सामान आप ईज़िली ला सकते हैं। तो स्टेयर्स और ये जो कॉमन एरिया है वहाँ पे ग्रेनाइट और आपका मार्बल का काम किया हुआ है। सो स्टेयर से उठते ही लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में सारे 2 BHK हैं, ठीक है। सो बेसिकली अभी जो मैं कवर कर रही हूँ वो स्टेयर से उठ के ही राइट साइड वाला है। और स्टेयर से उठते ही सबसे पहले आपको ये लिफ्ट का एरिया मिल जाएगा। ये लिफ्ट है, ठीक है। उसके बाद मैं इस फ्लैट को कवर कर रही हूँ जो कि स्टेयर्स के राइट साइड में पड़ेगा। ओके, सो बेसिकली मैं बता दूँ ये साउथ फेसिंग है, साउथ है, इस तरफ वेस्ट है, इस तरफ ईस्ट है और ये इस तरफ में जहाँ पे मैं खड़ी हूँ वो नॉर्थ है। सो बेसिकली ये साउथ साइड फ्लैट है। ये एंट्रेंस है। सो एंट्रेंस में घुसते ही साथ में जो सबसे पहले आपको दिखेगा वो है ये ह्यूज लिविंग कम डाइनिंग एरिया विथ बैल्कनी। सो ये एक बेडरूम है, ये एक कॉमन बाथरूम है और ये एक बेडरूम है। सो बैल्कनी आपको इस फ्लैट में 2 मिल जाएंगे। एक जो अटैच है आपके हॉल कम लिविंग एरिया से, एक आपके एक बेडरूम में अटैच है। और इस तरफ में जब आप गेट से एंट्रेंस से घुसेंगे सो लेफ़्ट साइड में आपको एक कवर्ड किचन मिल जाएगा। सो ये एक किचन है। ये आपका लिविंग और हॉल एरिया पे एक विंडो दिया हुआ है लेफ़्ट साइड में। यहाँ पे एक बेडरूम है। सेंटर में आपको कॉमन बाथरूम दिया गया हुआ है। यहाँ पे एक आपका बेडरूम है और ये आपका हॉल कम डाइनिंग में एक आपको ओपन बैल्कनी दी गई है और ये है आपका एंट्रेंस और वो है आपका स्टेयर्स। सो सबसे पहले मैं आपको किचन में लेके जाती हूँ। किचन आपका कवर्ड किचन है। किचन का साइज़ 6x6 है, ठीक है। आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे एक बड़ा सा विंडो दिया हुआ है। वहाँ पे आपका सिंक लगेगा। सिंक का पॉइंट अभी प्लेस जो है वो काटा नहीं गया है, बट यहाँ पे सिंक रहेगा। पॉइंट्स आपको बहुत सारे दिए हुए हैं। यहाँ पे एक पॉइंट्स है, यहाँ पे एक पॉइंट्स है। ऊपर आपको चिमनी के लिए स्पेस दिया हुआ है। यहाँ पे एक स्विच है। सो ये बेसिकली 6x6 का आपका ये किचन है। फिर आपको ये जैसे मैंने बताया यहाँ पे आप अपना डाइनिंग बैठा सकते हैं, मतलब यहाँ पे एवरीथिंग प्लान्ड है। आप इस जगह पे अपना किचन के सामने ही डाइनिंग सेट लगा सकते हैं।
इस एरिया को आप छोड़ सकते हैं, उस तरफ में आपका टीवी लगा सकते हैं और इस तरफ में आप अपना बैल्कनी से अटैच सोफ़ा सेट रख सकते हैं। सो चलिए अब हम सबसे पहले इस रूम को कवर करते हैं। सो ये एक बेडरूम है। सो इस बेडरूम में घुसते ही साथ में जो सबसे पहले आपको दिखेगा वो है एक वार्डरोब के लिए, वॉल माउंटेड वार्डरोब के लिए एक स्पेस छोड़ा हुआ है। 2 बड़े बड़े विंडोज़ हैं। सौरभ भैया ने जैसे पहले से ही बता दिए हैं, तीनों रूम पे आपको एसी का पॉइंट मिल जाएगा। यहाँ पे स्विचेस दिए हुए हैं। ओके, सो जो ये बेडरूम का जो साइज़ है वो 11 बाई 11 का ये बेडरूम का साइज़ है, ठीक है। सो अब हम वापस अपने हॉल पे आ गए। फिर उसके बाजू में ही आपको एक पड़ता है ये कॉमन बाथरूम। बाथरूम का जो साइज़ है वो 4 बाई 7.5 फुट का ये बाथरूम है, कॉमन बाथरूम है। इस पे यहाँ पे एक लंबी सी विंडो दी हुई है, ठीक है। आपका एकदम डेड एंड पे कोमोड बैठेगा। यहाँ पे आपको एक सेंटर में शावर पॉइंट दिया हुआ है, वहाँ पे गीज़र का पॉइंट दिया हुआ है और आप लोग चाहें तो यहाँ पे एक बेसिन बैठा सकते हैं, वॉश बेसिन या फिर, और यहाँ पे इस बाथरूम के जस्ट बाहर में आपको एक वॉशिंग मशीन का पॉइंट दिया हुआ है। सो अगर आप चाहें तो यहाँ पे अपना वॉशिंग मशीन रख सकते हैं कॉमन बाथरूम के बाहर। फिर उसके बाद ये दूसरा बेडरूम है। दूसरा ये मास्टर बेडरूम है। सो मास्टर बेडरूम जैसा मैं देख रही हूँ सिर्फ नाम पे ही नहीं है, काम का भी मास्टर बेडरूम है, क्योंकि इसमें अटैच एक बाथरूम दिया हुआ है, एक अटैच बैल्कनी दी हुई है और यहाँ पे भी वॉल माउंटेड स्पेस दिया हुआ है जहाँ पे आप वॉल माउंटेड अपना अलमीरा या वार्डरोब बना सकते हैं और एक खिड़की दी हुई है। सो बेसिकली इस कमरे का साइज़ भी आपका 11 बाई 11 का ये मास्टर बेडरूम है और इसी से अटैच आपको एक बाथरूम दिया हुआ है। सो इस बाथरूम का साइज़ जैसा मुझे दिख रहा है 3.5 बाई 4.5 का ये एक बाथरूम है, ठीक है। सो यहाँ पे कॉमोड रहेगा। यहाँ पे आपको शावर पॉइंट नहीं मिलेगा, यहाँ पे सिर्फ एक टैप का पॉइंट दिया हुआ है। सो एक टैप का पॉइंट है। सो बेसिकली ये जो बाथरूम है ये 3.5 बाई 4.5 ऑलमोस्ट साइज़ का ये अटैच बाथरूम है और इसी से अटैच एक बैल्कनी है, छोटी सी क्यूट सी बैल्कनी आपको दी गई है जिसका साइज़ ऑलमोस्ट 5 फुट बाई 3 फुट है। सो ये बेसिकली 5 फुट बाई 3 फुट का आपको एक छोटा सा बैल्कनी दिया हुआ है मास्टर बेडरूम से। सो उसके बाद ही आपका ये मास्टर बेडरूम है। सो इसमें ये स्विचेस दिए हुए हैं, इसी पॉइंट दोनों में रहेंगे, सारे कमरों पे, इवन लिविंग रूम में भी रहेगा। सो ये है आपका 2 BHK। इसका जो पूरा बिल्डअप एरिया है वो 875 है। सो ये है 875 सुपर बिल्ट एरिया के साथ ये 2 BHK। 2 बैल्कनी है, एक आपका हॉल कम लिविंग रूम से अटैच है, एक मास्टर बेडरूम से अटैच है। मास्टर बेडरूम में एक बाथरूम है, सेंटर में आपको एक कॉमन बाथरूम दिया हुआ है, उसके पास में वॉशिंग मशीन का स्पेस दिया हुआ है और एक ये बेडरूम है जिसमें 2 बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं विथ आपका ये वार्डरोब स्पेस। देन हॉल से ही एकदम कॉर्नर में आपको एक कवर्ड किचन दिया हुआ है। सो दिस इज दी 2 BHK इज। 2 BHK दिखा दिए हैं। अब मैं सौरभ भैया से उसका प्राइसिंग क्या है वो पूछना चाहूँगी और टाइल्स वगैरह की क्वालिटी, वायर की क्वालिटी तो आपको सब भैया ने नीचे ही बता दिया है। सो अभी हम पूछते हैं कि एक बड़ा सा बॉम्ब फोड़ दिया था मेरे सामने, नो ब्रोकरेज, नो एमिनिटीज चार्जेस। सो फ्लैट का एग्जैक्टली कॉस्ट कैसा है, कहीं वो सारा कुछ इसी में तो नहीं डाल दिया है। सो उस चीज़ को क्लियर करने के लिए हम सौरभ भैया से पूछते हैं कि फ्लैट का सुपर बिल्ट एरिया के हिसाब से पर स्क्वायर फीट प्राइस क्या है और ओवरऑल प्राइस क्या है। তো আমরা এখানে ফ্ল্যাটটা 3টে ইয়ে আছে। এই ফ্ল্যাটটা আমরা যেখানে দাঁড়িয়েছি এটা ফ্ল্যাট নাম্বার 870 স্কোয়ার ফিট আর বিসি হচ্ছে 860 স্কোয়ার ফিট। এই টোটাল ফ্ল্যাটকে আমরা থোক দামে বিক্রি করছি 27 lakhs।
ওটা যদি পার স্কোয়ার ফিটে ভাগ করা হয়, ডিভাইড করা হয়, তো 3100 রুপিস পার স্কোয়ার ফিট আসছে। हाँ, सो ऑलमोस्ट वही 3050 ऐसा कुछ ही आएगा। सो मतलब 27 लाख, मतलब इट्स रियली अमेजिंग यार। 27 लाख में क्या मिलता है आज, और उसमें आपको नो ब्रोकरेज, नो मेंटेनेंस, नो जीएसटी, ठीक है। तो मतलब जीएसटी आपको 1% वहाँ माइनस, ब्रोकरेज आपका 2% वहाँ माइनस, फिर उसका एमिनिटीज चार्जेस वो भी ऑलमोस्ट 2% वहाँ माइनस, मतलब 5% तो ऐसे ही माइनस हो गया। तो मतलब इट्स डिस्काउंट यार, डिस्काउंट चल रहा है, सेल चल रहा है, जस्ट ग्रैब इट, ओके। 860 वाले के जो लेआउट है ऑलमोस्ट सेम है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि एक जो मास्टर बेडरूम है उसमें अटैच बाथरूम और बैल्कनी है, और एक में आपको घुसते ही साथ में बेडरूम मिलेगा जिसमें अटैच बाथरूम है, लेकिन किसी भी रूम में, बेडरूम में कोई अटैच बैल्कनी नहीं है, वहाँ पे सिर्फ एक ही सिंगल बैल्कनी है। और जो ए पोर्शन जहाँ पे अभी हम खड़े हैं इसका लेआउट 870 है। सो इसमें एक आपको एक जो मास्टर बेडरूम है उसमें आपको अटैच बाथरूम और बैल्कनी मिल जाएगी, और एक कॉमन बेडरूम रहेगा, और इसमें बैल्कनी से अटैच हर लिविंग रूम और डाइनिंग रूम से अटैच आपको एक बैल्कनी दिया हुआ है। सो इट्स अ फिक्स्ड प्राइस, लाइक सेल चल रहा है, चाहे 860 लो चाहे 870 लो, आपको 27 लाख पे करना पड़ेगा पार्किंग के लिए। आप लोग का वीडियो देखने आने से ये सौरभ भैया पहले से बोल रहे हैं कि मतलब अगर आप लोग मेरा वीडियो देख के आते हैं और मेंशन करते हैं, अगर आप लोग मेंशन करते हैं कि आप बेस्ट बाय विद नीपा का चैनल देख कर आए हैं, सो डेफिनेटली इसमें भी नेगोशिएशन हो जाएगा। यो ग्रैब इट, ओके। सो 27 लाख 5% का तो हिसाब मैंने आपको ऐसे ही दे दिया कि 5% की छूट चल रही है फ्लैट में, नो ब्रोकरेज, नो नथिंग, और उसके बाद भी ऊपर से अगर आप मेरा चैनल का रेफरेंस देते तो उसमें भी डिस्काउंट है। सो डोंट बी लेट एंड ग्रैब इट, हाँ, फिर नहीं बोलना कि बिक गया। सो लोकेशन भी अच्छा है, प्राइम है, सब कुछ नियर बाई में आपको मिल जाएगा, और सब रेडी टू मूव इन। आपका जितना डॉक्यूमेंट्स अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो 1 महीना 1.5 महीना प्रोसेस में लगेगा, मुश्किल से 1-1.5 महीना इसको टचअप देने में लगेगा। सो 1-1.5 महीने में ये तैयार हो जाएगा। सो अभी मैंने आपको ये दिखा दिया है। इसके बाद चलते हैं टेरेस कवर करने के लिए। जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, टेरेस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि लिए छोटे मोटे इवेंट्स हम वहाँ पे कर सकते हैं, तो अभी हम टेरेस पे कवर करते हैं, ठीक है। सो चलिए टेरेस। ओके, सो फ्रेंड, जैसा कि मैं फाइनली टेरेस पे आ गई हूँ। सो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इट्स ब्यूटीफुल सोसाइटी, सारे जगह पे बिल्डिंग्स बनी हुई है। इट्स अ गुड प्लेस आई वुड से, ठीक है। और ये जो आप छत देख रहे हैं, इट्स अ ह्यूज टेरेस है, ठीक है। ये 2 पोर्शन में है, ठीक है। ये आपको पता ही है कि ये लिफ्ट के लिए एक जो इलेक्ट्रिक रूम वगैरह होता है ये वो है, और वहाँ पे एक पोर्शन है। सो बेसिकली अगर मैं कहूँ, सजेस्ट करूँ तो इसको आप है ना, गेस्ट के लिए कुछ इवेंट वगैरह होता है तो गेस्ट के लिए सिटिंग एरिया आप लोग इसको बना सकते हैं, ठीक है। और इस वाले पोर्शन को आप लोग अपना, जैसे कि ये वाला थोड़ा सा छोटा है, सो इस वाले एरिया में आप खाना वाने का मतलब कुकिंग के लिए जो ये होता है अरेंजमेंट कर सकते हैं खाना वाना बनाने के लिए। सो बेसिकली ये पूरा देखिए, सो वहाँ तक जैसा कि मैं बता रही थी कि वहाँ तक अगर आपको दिख रहा है पीच हो गया है, और ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के वहाँ तक में 1 महीने में आपका ये पीच रास्ता जो बनते बनते आ रहा है 1 महीने में हो जाएगा। सो ये बेसिकली है। चलिए अब हम सौरभ भैया से पूछ लेते हैं कि रूफ़ ट्रीटमेंट वगैरह क्या कर रखा है, रूफ़ ट्रीटमेंट क्या किया गया है। रूफ ट्रीटमेंट जॉल छत किया हुआ है, इसके ऊपर टाइल्स भी बैठेगा, और एक केमिकल है डॉक्टर फीस का, वो केमिकल भी यूज़ होगा यहाँ पर। अच्छा, सो यहाँ पे टाइल्स लगेगा बेसिकली। वाओ, सो टाइल्स लगने के बाद तो भैया ये एकदम इवेंट्स के लिए एकदम परफेक्ट प्लेस हो जाएगा। बारिश वगैरह में जैसे बताया केमिकल यूज़ किया हुआ है, तो आपको लीकेज वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, सो फ्रेंड्स, मैंने आप लोग को रूम टूर दे दिया है, टेरेस दिखा दिया है, लोकेशन के बारे में बता दिया है। सो आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग। अगर कुछ छूट जाता है सो प्लीज़ पार्डन मी, ओके। आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा कि कुछ मुझे और पूछना था या जानना था, तो मैं वहाँ पे नेक्स्ट टाइम अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में ज़रूर उसको ध्यान रखने की कोशिश करूँगी। सो फिलहाल अभी हम सौरभ भैया को बाय बोलते हैं, और अगर सौरभ भैया का कोई दूसरा प्रोजेक्ट तैयार होता है तो वो ज़रूर मुझे कॉन्टैक्ट करेंगे। सो मैं भी आपको अपडेट दूँगी।
और आप लोग अगर ये आपको यहाँ की क्वालिटी टाइल्स वगैरह पसंद आता है तो डोंट बी लेट। मैंने आपको बताया ऑफर चल रहा है, सेल चल रहा है, फ्लैट में सेल चल रहा है। सो मेंशन माय चैनल नेम एज वेल, डेफिनेटली यू विल गेट सम डिस्काउंट ऑन दिस प्राइस एज वेल। ओके, सो अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है, चैनल अच्छा लगता है, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड सायोनारा।